Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So today I will be sharing the books and the instruments you are supposed to carry in the BDS first year. Before starting it, I just want to remind you that these are the books that were recommended to me by my college and the professors and seniors. So if you are provided with the list, then you should follow it up and ask your seniors or professors in your own college also. Basically, there are total 5 subjects in BDS first year: physiology, DADH, anatomy, biochemistry, and dental material. So in the following video, I will be telling you the name of the books and the instrument used in each subject separately. Starting with DADH, we have first book is Manual of Oral Histology and Oral Pathology by Maji Josh. This book will be used in making all the H&E diagrams in your examination and record books. The second book is also by Maji Josh. It is Essentials of Oral Biology, and let me tell you, it is really important book from exam point of view while writing answers and revising. It is a really clear concept book. It will help you write all your answers really easily and revise before examination. Also, prepare all the diagrams, H&E and normal diagrams from both the books while writing your exams. The third book is Wheeler's, will be used in dental anatomy. It has all the basic definitions of dental anatomy and all things related to your carving stuff. Fourth book is Orban's, which is generally recommended by the professors. It is the book of dental histology. It's a bit difficult to understand, so you can always refer to Maji Josh. Next, coming on to the anatomy book. The first one is Inderbir Singh's Human Embryology. We were basically taught only 5 chapters from this book, so you can go for PDF or ask your senior about this book. If you actually want to buy it, you can also buy this book. The next book is Vishram Singh Head and Neck Volume. It's really easy book for its diagram and revision before exams, so you can refer to this book. Next book is BDC for dental students. Basically, it's combination of all the volumes that are required for dental students. Next book is Human Osteology. The only problem with this book is it's 3rd edition and there's not much information in this book. You should go for 5th or 4th edition. Coming on to dental material, well, you will not be having any exams, but it is really important while doing all the practicals, so you should go for Philips. While it becomes a bit difficult to understand this, so you can go for Manapalli. The next set of books, I didn't refer to them totally, but you can see that I bought Human Histology, but I actually did it from BDC. The other is Human Physiology. We were actually given really good notes by our professors. And Biochemistry, I actually did from Harper's and YouTube videos. That I have genuinely told you कि मैंने कौन सी बुक से सच में पढ़ाई की थी, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया होगा. इसके अलावा तुम अपने सीनियर्स, अपने प्रोफेसर्स, नेट पे बहुत सारी साइट्स हैं, यूट्यूब है, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारी बुक्स रेफरेंस कर सकते हो. इसके अलावा जब तुम बुक स्टोर पे जाओगे तब उनसे भी पूछ सकते हो.
और रही बात अगली, तो मेरी तरह जल्दबाजी मत करना बुक्स ख़रीदने में, बिकॉज़ मैंने सच में बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेस में बिताया था कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं, और मेरा सीनियर से इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा था, तो आई एक्चुअली एंडेड अप बाइंग सो मैनी रॉन्ग बुक्स, जो कि तुमने देखा होगा, मैंने पढ़ी भी नहीं है उन्हें। तो एज अ सीनियर मैं तुम्हें यही एडवाइस करूँगी कि तुम थोड़े वक्त रुक जाना, पहले देखना क्या चल रहा है, उसके बाद बुक्स लेना। इस स्टेज पे हमें लगता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं बुक्स ख़रीदने में, बट ऐसा नहीं होता, वो शॉप भी वहीं रहती है और हम भी वहीं रहते हैं, सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट्स, पहला है फिजियोलॉजी में तुम्हें सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसमें भी कॉटन है, एक सैनिटाइज़र है और लेंस सेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी 2 चीज़ें तो तुम दूसरे से भी ले सकते हो, बट लेंस सेट अपनी पर्सनलाइज होती है, ठीक है, एक ही बार यूज़ करनी होती है एंड देन यू हैव टू थ्रो इट। ऑल्सो मैंने ये पैक ऑफ 100 लिया था, जो कि मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा था। अगर तुम चाहो तो निडल भी ले सकते हो, वो शायद 2 रुपीज़ ईच आती है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू DADH इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये बॉक्स मैंने 300 में लिया था ताकि सारी चीज़ें मैं एक साथ ही रख सकूं, बिकॉज़ वैक्स से जब टूथ कार्व करते हैं तो वो टूट जाता है बहुत आसानी से। सो फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें इसमें लेनी है वो है मैकिन्टॉश शीट। ये 2 टाइप की आती हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। वैक्स वाले के लिए ये वाली ज़्यादा बेटर लगी मुझे। दूसरा होता है लैक्रॉन्स कार्वर, वो तुम्हें एक ही लेना होता है, तो तुम अपने हिसाब से तुम्हारे हाथ में कौन सा जमता है वो देख कर ले लेना। इसके अलावा इसमें तुम्हें एक चाहिए होता है पॉलिशिंग क्लोथ, जो कि कुछ नहीं है, बेसिकली जो अपन चश्मा साफ़ करने का जो कपड़ा होता है वही लेना है। और इसके अलावा एक डिवाइडर होता है जो कि मेजरमेंट में काम आता है, और एक स्टील का स्केल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बॉक्स भी ले आना ताकि तुम उसमें अपने वैक्स ब्लॉक और जो भी तुम कार्व आउट करो वो रख सको। मैंने एक एग्जांपल दिया है तुथ और वैक्स का, ये वैक्स ब्लॉक है और दूसरा तुथ है जो मैंने कार्व किया था। जो वैक्स ब्लॉक है वो एक्चुअली इस बॉक्स में आता है और कंपनी का नाम है पायरेक्स। इसके अलावा एचनी पेंसिल, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स के लिए चाहिए होगी। तो ये 2 टाइप की मैकिन्टॉश है। ऊपर वाली मैकिन्टॉश बेसिकली DM में मुझे ज़्यादा सही लगी, जहाँ पे आप डेंटल मटेरियल का यूज़ करते हैं एंड इट्स इजी टू वॉश ऑफ। दूसरी वाली जो मैकिन्टॉश है वो वैक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप आसानी से वैक्स उससे निकाल सकते हो। इसके अलावा जो DM में सामान चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं बोल्स। इसमें 2 साइज़ के बोल्स आते हैं, एक तो थोड़ा लार्ज साइज़ होता है, एक स्मॉल होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है उसके हिसाब से। मैंने पहले 2 ही लिए थे, बाद में वैक्स के काम के लिए तीसरा भी ले लिया। इसके बाद आते हैं स्पैचुला। सो इट्स लाइक स्ट्रेट स्पैचुला, एक कर्व्ड स्पैचुला होता है। ये देख कर लेना, कभी कभी जल्दबाजी में दोनों ही सेम आ जाते हैं और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। द थर्ड थिंग यू नीड इज नाइफ, ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं। इसके बाद आती है एक स्टील स्केल, और ये DM में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आती है ग्लास स्लैब, जो कि आपको ऑक्लूजन देखने के लिए और सरफेस स्ट्रेट देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद आती है आपकी किडनी ट्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोफेसर को अपना जो भी आपने बनाया है वो दिखाने जाते हो, तो वो आपको एक किडनी ट्रे में लेके जाना होता है। आई एम रियली सॉरी, ये सामान बहुत ही गंदा है बिकॉज मैंने अभी साफ़ भी नहीं किया है इसे। इसके बाद है डेंटल प्लास्टर। वैसे तो कॉलेज में अवेलेबल होता है, बट कई बार खुद से ख़रीदना होता है, तो ये मुझे 30 रुपीज़ का पैकेट मिला था, ½ kg का या 1 kg, आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं है मेजरमेंट।
और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक टाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसपास कोई काम हो रहा हो तो फटाफट से ले लेना। और ये 80 रुपीज़ का डेंटल प्लास्टर है, जो कि आगे के प्रैक्टिकल्स में काम आता है जब आपका डेंटल प्लास्टर का प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा सैंड पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके नंबर्स को समझना भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ना डिफरेंट नंबर के सैंड पेपर आते हैं। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे 120 वाला जो सैंड पेपर है ना, ये बहुत ही कोर्स होता है, मतलब 120, 100, इससे आप मतलब बहुत ज़्यादा कोई सरफेस को घिसना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे जो 400 वाला सैंड पेपर होता है, उससे बहुत ही फाइन अगर आपको घिसना हो तो काम में आता है। अभी जब आप डीएम के अंदर क्यूबॉइड ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो आपको उनको शेप देने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। पर मैंने ये यूज़ करे हुए सैंड पेपर्स अभी भी क्यों रखे हैं, क्योंकि शायद मैं बहुत ही कंजूस इंसान हूँ और मुझे लगा ये दोबारा काम में आ जाएंगे। इसके अलावा कोशिश करना कि तुम ये चीज़ें पेंट की दुकान से ख़रीदो, क्योंकि वहाँ पे थोड़े चीपर रेट्स में मिल जाते हैं, क्योंकि वो जनरली ये सब चीज़ें सेल करते हैं ना, और हम डेंटिस्ट वालों से खरीदेंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। रही बात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, तो मैंने सिर्फ एक लैपटॉप लिया है, और वो भी सेकेंड हैंड है, डेल कंपनी का, विच इज़ रियली ईजी एंड हेल्पफुल इन रीडिंग PDF, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। बट इट्स ओके इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, इतना ज़रूरी नहीं है। स्टिल आई टोल्ड यू कि आप फ़ोन में PDF या लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रैक्टेड टूथ अपने PG से या किसी डेंटिस्ट से ज़रूर मांग लेना, क्योंकि ये तो सबमिट करना होता है। एंड फाइनली यू बर्न इट योर ओन वाइट कोट। तो या बिकम अ गुड डॉक्टर और अपने मॉम डैड को प्राउड करवाना अपने आप पे। एंड यस, एन्जॉय योर फर्स्ट ईयर BDS। नाउ दैट मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो रह गई होंगी। तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अब थोड़ी रेंट कर लेते हैं कि और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी। फर्स्ट ईयर BDS स्टार्ट करने वाले हो तो आई गेस बहुत ही खुश होंगे, साथ ही साथ थोड़ा डर भी लग रहा होगा। तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या ही होगा मेरे साथ। तो आई काइंड ऑफ हेल्प यू। तो इसमें और कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे। और या इट्स माई वेरी फर्स्ट वीडियो, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ क्या डालूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना लेट्स हेल्प आउट आवर जूनियर्स, राइट। के अलावा इतनी टेंशन मत लेना, फर्स्ट ईयर एंजॉय करना। मतलब ऐसा लगता है कि यार इनने इतनी सारी बुक्स बताई हैं तब सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बहुत कम सिलेबस आता है, बट वो बहुत कम सिलेबस हम बहुत अच्छे से समझ लें तो फिर बात ही क्या है ना। इसके अलावा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना, उससे भागना मत। अगर स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हो तो उसकी चीज़ को बार बार करना, क्योंकि ये काम तुम्हारे हाथों को एक्सपीरियंस देने के लिए है। मसल मेमोरी होती है ना, वो जनरेट करने के लिए है कि बस तुम्हें बोल दे कि तुम्हें ये तो कार्व करना है, तुम्हें लगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, बट तुम फिर भी उसे कार्व कर दो। सो इट्स लाइक मसल मेमोरी जनरेट करना, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान देना, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बेसिक्स ही भूल जाते हैं। तो जैसे डेंटल एनाटमी है तो उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ होती है कि टूथ नंबरिंग सिस्टम है, कि दांत का नंबर क्या है, अगर ये नंबर का दांत बाहर निकालना है तो वो कौन सा दांत होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।